My lovely students, welcome to Logical. In this session, we'll be discussing some data interpretation sets for your XMT examination. Start करते हैं. And if you've not already subscribed to our channel, make sure to subscribe to our channel and also like this session. You can join the Telegram channel Methodological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first of all, let us see. This is the first data set that we'll be discussing. So two questions in this data set. Then the second set on a pie chart with 4 questions. Then one on table with 4 questions. And then finally another with 5 questions. So these are all the questions that we'll be discussing in this session. So pause the video and first solve these sets yourself and then only watch the solution. Okay, so first set lete hain. So first set is about failure rate of electronic components. Number per thousand is given and the items are electronic components are picture tubes, signal devices, capacitors, integrated circuits, printed circuit boards and hybrid microcircuits. First question, from the failure data which of the following statements are not true? हमें गिवन क्या है? गिवन है नंबर पर थाउजेंड ऑफ फेलियर रेट. फॉर एग्जाम्पल, फॉर पिक्चर ट्यूब्स द वैल्यू इज मिनिमम 15 ओनली. दिस इज 15 नंबर पर थाउजेंड, यानी कि 15 आउट ऑफ थाउजेंड पिक्चर ट्यूब्स 15 आउट ऑफ थाउजेंड फेल. ठीक है, 15 पिक्चर ट्यूब्स आउट ऑफ थाउजेंड फेल. Similarly, for signal devices, 16. This is 16. 16 out of 1000 picture tubes signal devices fail. Okay, and so on for all the other items. First statement: the least reliable component is hybrid microcircuits. That is true because that has highest failure rate. So that is least reliable. This is correct. Second statement: failure rate of capacitors is 25% higher than that of signal devices. So capacitors का failure rate is 20 out of 1000 and for signal devices that is 16 out of 1000. तो 16 है सिग्नल डिवाइसेस के लिए, 20 है कैपेसिटर्स के लिए, तो 4 ज़्यादा है. 4 more than 16 which is 25%. 4 is 25% of 16, so that is correct also. सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, बट क्वेश्चन ने पूछा है विच आर नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू. तो फर्स्ट आंसर नहीं है, सेकंड आंसर नहीं है. थर्ड वन, लोवेस्ट प्रायोरिटी फॉर इन्वेस्टिंग इन एनी चेंजेस और एडिशन टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्लान्स शुड बी गिवन टू पिक्चर ट्यूब्स एंड सिग्नल डिवाइसेस. कह रहा है लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको देना है? पिक्चर ट्यूब्स को और सिग्नल डिवाइसेस को. लोवेस्ट प्रायोरिटी उसको दोगे for investing in any changes or additions to the component manufacturing units in companies investment plans which has lowest failure rate. Lowest priority should be given to lowest failure rate items and highest priority should be given to highest failure rate items. So definitely this is also correct because picture tubes and signal devices are having the lowest failure rates, so that should be given lowest priority. This is also correct, and definitely answer will be option C, that is fourth statement. But एक बार चेक कर लेते हैं फोर्थ को कि whether that is true or not. Obviously that should be not true considering कि पहले तीनों ट्रू हैं, पर फिर भी चेक करते हैं. कैपेसिटर्स आर मोर रिलायबल दैन पिक्चर ट्यूब्स. तो कैपेसिटर्स आर मोर रिलायबल दैन पिक्चर ट्यूब्स. पिक्चर ट्यूब्स हैव अ लोअर फेलियर रेट, तो दिस इज नॉट करेक्ट. Capacitors are less reliable instead, not more reliable. So answer will be fourth statement only. Next question. For the equipments using 400 integrated circuits, 240 capacitors and 120 printed circuit boards to run with minimum downtime, how many spares should be kept in the store respectively? So we need to find out how many spares should be kept as per the data. Failure rate हमारा क्या है? For integrated circuits, for capacitors and for printed circuit boards. So for integrated circuits, failure rate is 30 per 1000 और हमें लेने हैं 400. तो स्पेयर में कितने होने चाहिए? 400 इंटू 30 बाई 1000, दैट शुड बी स्पेयर कंसिडरिंग द फेलियर रेट. तो 4 इंटू 3 12 शुड बी इन स्पेयर. ओके, 12 शुड बी इन स्पेयर, यानी कि ऑप्शन सी तो आंसर नहीं है. सिमिलरली 240 कैपेसिटर्स आ रहे हैं और फेलियर रेट फॉर कैपेसिटर्स इज 20 पर 1000 यानी 1/50. तो 240 by 50 शुड बी इन स्पेयर. 240 इन 20 by 1000 और 240 by 50, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5. 4.8, बट इंटीजर में लोगे, फ्रैक्शन में थोड़ी लोगे, तो 5 शुड बी द आंसर हियर. यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली ऑप्शन बी मस्ट बी द आंसर. 12, 5 एंड 4, क्योंकि बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स 120 है और फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स 33 पर 1000. तो 120 इंटू 33 बाई 1000, 0 से गया 0. 3 इंटू 33 बाई 25 यानी 99 by 25 which is approximately 4. So 4 should be the answer for this. 12, 5 and 4. 12 integrated circuits, 5 capacitors and 4 printed circuit boards should be kept in spares in the store for minimum downtime. Okay. ठीक है, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं. तो सेकंड सेट इज अ बाई चार्ट बेस्ड सेट. फॉलोइंग बाई चार्ट
gives the percentage distribution of employees in different departments in XYZ Company Limited during the years 2005 and 2006. तो 2005 का डेटा गिवन है हमें और 2006 का डेटा गिवन है. Employees are in 2005 are 18,000 and in 2006 those are 20,000. फिर हमें गिवन है कि A represents administration, B represents operations, C sales and marketing, D finance and accounts, and E corporate headquarter. Okay. So first question, if the average monthly salary of employees in administration was rupees 12,000 in 2005, what was the approximate total salary expense of administration in 2005? Approximate total salary expense of administration. A in 2005. तो 2005 में A is 22%, 22% और employees are 18,000, तो 1% क्या होगा 180 और 22% will be 22 into 180, यानी total employees will be 22 into 180 and salary is 12,000 for one employee, तो into 12,000 कर दोगे. This will be our answer. 22 into 18 into 12 approximately क्या रहा है 18 into 12 is 216, तो 22 into 216, तो रफली ये 47 के आसपास 4,700 मतलब के आसपास वैल्यू आ रहा है. बट क्लियरली देख रहे हो कि ऑप्शंस अगर हम देखें 57 लाख, 4.7 करोड़, 66 करोड़ एंड 66 लाख, तो आंसर हमारा शुड बी ऑप्शन बी, कंसिडरिंग कि जो मल्टीप्लिकेशन है इसी से समझ में आ रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी 4,700 के आसपास का वैल्यू. इजंट इट सो? तो इतना ही सफिशियंट है बताने के लिए कि आंसर शुड बी ऑप्शन बी, कोई और ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है. बाकी अगर करना है कैलकुलेट तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा. 4216 इंटू 2 इज 432, तो 4320 plus 432 that will be 4752. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट था ना यहाँ पे 4320 432 4752. हाँ ठीक है. सो 4752 followed by 4 zeros. So this is 4 crore 75 lakh 20,000. 4.75 crores roughly. Option B is the answer. Next question. What is the percentage increase in number of employees in sales and marketing? Percentage increase in number of employees in sales and marketing. So sales and marketing is C. So C में value is 18% in 2005 and 20% in 2006. But employees, total employees भी increase किए हैं. पहले 18,000 थे और अब 20,000 हो गए. So basically in 2005, employees in sales and marketing are 18 into 180. And in 2006, this is equal to 20 into 200 because 1% 200 है. रेशियो निकाल लो, 0 से गया 0 और फिर 2 से यहाँ बचा 9, इधर बचेगा 10, अगेन 9, 10. So effectively from 81 the employees are 100, so there is an increase of 19. So 19 by 81 in percentage we have to find out. So 19 by 81 is roughly 25% के आसपास का वैल्यू. बट सिंस नॉट दिस भी गिवन है तो हमें प्रिसाइजली कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 25% कितना आएगा, 1/4 निकाल लेते हैं 81 का. 1/4 विल बी 1/4 कितना होगा और 25% दैट विल बी 20.25. 81/4 20.25 इज 25%. बट हमें चाहिए 19 तो माइनस 1.25 करना पड़ेगा. दिस इज 25% और 1.25 इज बेसिकली 0.81 होगा हमारा. 0.81 विल बी 1%, तो 1.25 विल बी इक्वल टू 1.5% अप्रॉक्सीमेटली. तो 1.5% सप्लाई कर दोगे, थोड़ा सा उससे हायर होगा, तो 25 माइनस 1.5 विल बी 23.5%. और उससे भी थोड़ा 1.5% हायर वैल्यू सप्लाई करें तो आंसर विल बी 23.45%. आंसर कैन नॉट बी 23.55% क्योंकि 1.25 हमारा, अगर हम 1.5% कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 0.81 प्लस 0.405 यानी कि 0.1 आ जाएगा 1.215. ठीक है, तो 1.215 इज बेसिकली 1.5%, उससे स्लाइटली हायर होगा. सो दैट इज वाई 23.45% इज डेफिनेटली द आंसर. अगर 23.5% से हायर वैल्यू दिया होता तो वो आंसर नहीं होता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच डिपार्टमेंट इज द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ द मैक्सिमम इन 2006? वेरिएशन इन स्ट्रेंथ कौन से डिपार्टमेंट में मैक्सिमम होगा, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को एस्टिमेट करें तो वहां से भी एक आइडिया हमें लगता है. ठीक है, बिकॉज एम्प्लॉइज आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 2005 टू 2006, इंक्रीज हो रहा है. ओके, और चेंज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, इन एडमिनिस्ट्रेशन और ए 22% 24% हो रहा है. देयर इज अ चेंज, डेफिनेटली चेंज हो रहा है बिकॉज एम्प्लॉइज भी इंक्रीज कर रहे हैं और परसेंटेज भी इंक्रीज कर रहा है. देयर इज अ चेंज. बी में 23% है, अगर जस्ट इन केस इट इज नॉट विजिबल तो 23% से 26% हो रहा है. तो यस, बी में चेंज इज स्लाइटली हायर कंपेरेटिवली.
ठीक है, और सी में 18%, 20%, डी में 29% इन फर्स्ट केस और सेकंड केस में 20% हो रहा है। तो देयर इज अ स्टीप चेंज, बट पर्सपेक्टिव देखो तो एम्प्लॉइज इंक्रीज किए हैं, परसेंटेज डिक्रीज किया है, ठीक है, बट स्टीप चेंज है, तो चांसेस है कि डी आंसर हो सकता है। सिमिलरली चांसेस है कि बी भी आंसर हो सकता है, क्योंकि बी में एम्प्लॉइज तो इंक्रीज किए ही किए ओवरऑल, और बी में परसेंटेज भी इंक्रीज किया और 3% इंक्रीज किया, तो चांसेस या तो आंसर हमारा बी होगा या फिर डी होगा, ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। ठीक है, कंसिडरिंग द वैल्यूज, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद भी ये पता चलेगा, बट क्या ये बात पहले से समझ पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली फॉर ई, तो ए, सी एंड डी कैन नॉट बी द आंसर, आंसर विल बी इधर बी और डी, तो हम सिर्फ और सिर्फ बी और डी में ही कैलकुलेट करेंगे, उतने से ही हमारा काम चल जाएगा, हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्या ही क्लियर है? अदरवाइज सबको भी कैलकुलेट करना चाहते तो कर सकते थे, बट इतना जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जरूरत नहीं है जिसकी उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको क्यों करेंगे? तो ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, और 1% इज 180 इन 2005 एंड 1% इज 200 इन 2006, और इन केस ऑफ बी दैट इज 23%, तो 23 इंटू 180, और दिस इज 26 इंटू 200 इन 2006। सिमिलरली फॉर डी दैट इज 29 इंटू 180 और देन 20 इंटू, हाँ अगर वैल्यूज हमारी पास पास होती तब डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करना पड़ता, कोई और ऑप्शन वहाँ पे बचता नहीं। ठीक है, अब या तो इनका रेशियो निकाल लेते, रेशियो से आइडिया लगा लो, ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन सिंपल है तो वैसे भी कर सकते हो। 23 इंटू 18 क्या आएगा? 23 इंटू 18, 23 इंटू 9 इज 207, तो दिस इज 414, तो 4140, एंड दिस इज 5200, तो डिफरेंस आया हमारा 1060। सिमिलरली यहाँ पे 29 इंटू 18, 29 इंटू 9 इज 261, तो दिस इज 5220। ठीक है, या तो फिर 580 माइनस 58, 580 माइनस 58 कर देते, तो 560 प्लस 2, सॉरी 520 प्लस 2, 522, 5220, और ये आ गया हमारा वैल्यू 4000। तो यहाँ पे चेंज आ रहा है हमारा हायर, विच इज 1220, तो क्लियरली डी में वेरिएशन इज हायर, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चाहते तो बाकी के लिए भी निकाल सकते थे, बट जरूरत नहीं था निकालना हो, तो ए के लिए भी निकाल लेते हैं। ए के लिए वैल्यू आ जाएगा 22 इंटू 180, और दिस वैल्यू भी 24 इंटू 200, बट उससे हायर वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इसलिए जरूरत नहीं था। ठीक है, 22 इंटू 18 क्या होगा? 22 इंटू 9 विल बी 198, दैट विल बी 396, 3960 एंड 4800, तो दैट विल बी 840। सिमिलरली फॉर ई निकालना है, तो ई के लिए 8%, तो 8 इंटू 180 एंड 10 इंटू 200, so this is 2000 and this is 1440, so difference will be 560 and so on for C अगर निकालना हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सी तो ऑप्शन में भी गिवन नहीं था इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 300 एम्प्लॉइज लेफ्ट ऑपरेशंस एट द एंड ऑफ 2005, हाउ मेनी ज्वाइंड इन 2006? 300 ने लेफ्ट किया है तो कितनों ने ज्वाइन किया होगा इन 2006? तो ऑपरेशंस का ऑलरेडी हमने डेटा कैलकुलेट किया हुआ है, ऑपरेशंस हमारा है बी, तो बी का डेटा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 1060 का इंक्रीज आया है फ्रॉम 2005 टू 2006, there is an increase of 1060 effectively, isn't it so? तो अगर इंक्रीज आया हमारा 1060 का, नेट इंक्रीज इज 1060 फ्रॉम 2005 टू 2006 फॉर ऑपरेशंस, एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि 2005 टू 2006 के बीच 300 एम्प्लॉइज लेफ्ट, तो अगर 300 ने लीव किया है, माइनस 300 हुआ है, तो डेफिनेटली प्लस कितना करोगे? 1360, तब तो जाके चेंज हमारा 1060 का आएगा, तो डेफिनेटली 1360 मस्ट हैव ज्वाइंड, ऑप्शन सी मस्ट बी द आंसर। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So this set is also completed. Next set. Next set is based on a chart, based on a table. The chart represents data collected for an online job portal, infinitejobs.com. We've been given data for 2 years, 2004 and 2005. Category, technical and managerial. Number of registrations, number of candidates who posted their CVs, number of candidates shortlisted by the employers, and number of offered jobs. और फिर हमें हर एक क्वेश्चन में 2 statements again we have to identify whether the statement is true or not for each question. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट एक्स, द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम 2004 to 2005 इज हायर फॉर मैनेजरियल कैंडिडेट्स देन फॉर टेक्निकल कैंडिडेट्स। परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस
फ्रॉम 2004 to 2005. ओके, तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मैनेजरियल कैंडिडेट क्या है, 19,236 से हो गया है 45,292. देयर इज अ स्टीप इंक्रीज, राइट. 19,236 से 45,292. ठीक है, तो मैं समझाने के लिए इतना लिखना है, अदरवाइज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इसमें देख के नजर आ रहा है कि 19,236 से 45,292, यानी कि 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज आया, 125% के आसपास का इंक्रीज आया अप्रॉक्सीमेटली, और दैट इज फॉर मैनेजरियल. और टेक्निकल में वैल्यूज आर वेरी क्लोज इंस्टेड. 61,000 63,000 हुआ है ओनली, 61 के से 63,000 हुआ है, ओनली 2,000 का इंक्रीज आया, बहुत मिनिस्क्यूल इंक्रीज आया, 1/30 यानी कि 3.33% के आसपास का इंक्रीज आया. सो वेरी लो इंक्रीज, यानी कि डेफिनेटली मैनेजरियल में इंक्रीज इज हायर. तो द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट. हायर फॉर मैनेजरियल कैंडिडेट्स, दैट इज मेंशन एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट. परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, ये भी ध्यान देना. ठीक है, हालांकि यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज भी ज़्यादा है और परसेंटेज भी ज़्यादा है, बट जस्ट इन केस. ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट की बात कर रहा है. Statement Y, the overall registrations have grown by more than 25%. Is that true or not? तो overall registration 2004 कितना था, 61 plus 19, that was 80,000 something, 80,000 to 441. And in 2005 this value is 63 plus 45 कितना आ गया, 108. और फिर 33 रफली 600 आ गया. ठीक है, या फिर 590. तो 80,441 से 108,591, यानी कि इंक्रीज आया हमारा 27,000 प्लस का, यानी कि 30% के आसपास का इंक्रीज आया है. 27,000 प्लस का इंक्रीज आया 30% के आसपास. तो यस, दैट इज मोर देन 25% ऑल्सो. तो बोथ आर करेक्ट, बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू. फर्स्ट और सी इज द आंसर, बोथ आर ट्रू. इजंट इट सो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Second question, statement X, the percentage of dropouts from registration stage to posting CVs had decreased from 2004 to 2005 for managerial category. Managerial category में percentage of dropouts has decreased. कहाँ से कहाँ, registration stage to posting CVs. Okay, for managerial category हमें focus करना है. 2004 में क्या हुआ है, there are 19,000 registrations but 15,389 have posted their CVs. तो कितनों ने ड्रॉप आउट किया, 19,000 15,000 समथिंग, रफली 4,000 ने ड्रॉप आउट किया है. 3,900 के आसपास, 3850 हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ 19,236. तो 3850 आउट ऑफ 19,236, विच इज रफली कमिंग आउट टू बी 38/190, यानी कि रफली 1/5 आ रहा है. 20% ड्रॉप आउट है इन 2004. ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश करना है. हर एक क्वेश्चन में प्रिसाइज आंसर निकालने की कोशिश नहीं करनी है. कई बार उतने सही आंसर आ जाएगा जहाँ पे बहुत वैल्यूज क्लोज आए, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हमें ज़्यादा अप्रोक्सीमेट होना है, ज़्यादा क्लोज होना है, ज़्यादा बेटर कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है. ठीक है, सो डेफिनेटली ड्रॉप आउट्स इन 2004 इज 20%, क्योंकि परसेंटेज ऑफ ड्रॉप आउट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और डिक्रीज करने के लिए यानी कि लेसर होना चाहिए इन 2005. तो 45,000 से 40,000 हुआ है, तो डिक्रीज कितना है, रफली द डिक्रीज इज 4,500, विच इज क्लियरली 10%. 10%, तो 20% से 10% हो गया, तो डेफिनेटली परसेंट ऑफ ड्रॉप आउट हैज डिक्रीज्ड. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर एब्सोल्यूट ड्रॉप आउट पूछता तो एब्सोल्यूट ड्रॉप आउट हैज इंक्रीज्ड इन फैक्ट, बिकॉज 3,800 550 के आसपास था इन 2004 एंड 2005 दैट वैल्यू इज 4,500, यानी कि डेफिनेटली एब्सोल्यूट ड्रॉप आउट हैज इंक्रीज्ड. इफ क्वेश्चन वाज अबाउट एब्सोल्यूट ड्रॉप आउट्स फॉर मैनेजरियल कैंडिडेट्स, then that would have been increased, but percentage dropouts has decreased. Okay, and that is why this question probably is there. Clear? So statement X is correct. Statement Y, the percentage of dropouts was higher for technical than for managerial category in 2005. तो percentage of dropouts, again percentage की बात कर रहे हैं of dropouts, higher for technical. Technical के लिए क्या है, 63,000 से that is 60,000, यानी there is a dropout of 3,000 approximately, 3,100, which is 5% only 5%. तो definitely that is not higher for technical, higher हमारा managerial के लिए है. तो this is not correct. Higher for managerial category and lower for technical. For technical that is approximately 5%, और for managerial that is approximately 10%. Okay, क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है ये बातें, क्लियर है ना? ठीक है, सी परसेंट ऑफ ड्रॉप आउट्स इज हायर फॉर टेक्निकल, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज फॉर टेक्निकल दैट इज ओनली 5%.
भाई रफली 3100 है, एग्जैक्टली 3150 यहाँ पे भी है 3150 बाई 63 298, यानी कि रफली 5% ही आ रहा है यहाँ पे भी देखो। तो वैल्यूज इतनी सिंपल हैं कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। 1/20 approximately 5%. Next question. Statement X. The success rate of candidates getting shortlisted based on CVs is higher for managerial category than for technical category in 2005. Okay. तो सक्सेस रेट ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन सीवीज, तो कितनों ने 2005 की बात कर रहे हैं, एंड वी हैव टू कंपेयर टेक्निकल एंड मैनेजरियल बेस्ड ऑन शॉर्टलिस्टिंग। तो इन 2005 in technical 60,000 have submitted CVs and 637 have been shortlisted out of 60,000. And in the managerial category, out of 40,737, 763, 399 have been shortlisted. तो वैल्यूज थोड़ी सी क्लोज हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है, बट हाँ इतनी क्लोज है कि ये थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। ना क्लोज कहाँ है, क्लोज तो नहीं है। इन वन केस देखो 1% क्या आएगा हमारा फर्स्ट टेक्निकल कैटेगरी में, 1% विल बी 601 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1%, तो क्लियरली ग्रेटर देन 1% आ रहा है। और इन मैनेजरियल कैटेगरी 1% विल बी 407.6 और दिस इज 399 विच इज लेस देन 1%, तो ग्रेटर देन 1% आ रहा है टेक्निकल में। तो डेफिनेटली गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इज नॉट हायर फॉर मैनेजरियल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हायर फॉर टेक्निकल, हायर फॉर टेक्निकल। ठीक है, सक्सेस रेट विल बी इन परसेंटेज ऑब्वियसली। ठीक है, रेशो में देखोगे या परसेंटेज में देखोगे, रेशो परसेंटेज बहुत बातें की है, तो डेफिनेटली सक्सेस रेट इज हायर फॉर टेक्निकल कैटेगरी एंड नॉट फॉर मैनेजरियल कैटेगरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे भी इनकरेक्ट है। सेकंड वन, सक्सेस रेट ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन सीवीज इज बेटर फॉर मैनेजरियल इन 2005 एंड 2004। 2005 और 2004 को कंपेयर करना फॉर मैनेजरियल कैटेगरी, तो मैनेजरियल कैटेगरी में 2004 में क्या है, 15389 से आया है 138। ठीक है, तो इनको थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमारा क्या कंपैरिजन आ रहा है, क्या शॉर्ट लिस्टिंग आ रहा है, मैनेजरियल की बात करते हैं 2005 2004। 2004 में दैट इज 138 आउट ऑफ 15389, 1% विल बी 153.89, तो 138 डिवाइड बाई 153.89 विच इज 1%, दिस इज इन 2004। और 2005 का वैल्यू क्या है, 1% इज 407.63, तो 399 अपॉन 407.63। ठीक है, तो रफली दिस इज वेरी क्लोज टू 1। इन सेकेंड केस दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 1, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आ रहा है 15389.89 में। इफ यू सब्ट्रैक्ट 15.89 तब जाके मिलेगा ना तुमको 138, यानी कि दिस इज रफली 0.9 और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास ही है, 1 से थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा है, 8 लेसर है, 407.63 माइनस 8, और 8 कितना होगा इसका 2%, यानी कि दिस इज रफली 0.98। क्या ये क्लियर है भाई, 407.63 का 1% विल बी 4, 2% विल बी 8। ठीक है, 2% विल बी इक्वल टू 8, तो 0.98, 98% आ रहा है, यानी कि 0.98 वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे तुम देखोगे 10% सब्ट्रैक्ट करोगे कि रफली 90%, यानी कि 0.9 वैल्यू आ रहा है, तो क्लियरली 2005 में वैल्यू इज हायर। तो सक्सेस रेट ऑफ कैंडिडेट्स इज हायर डेफिनेटली फॉर मैनेजर कैटेगरी इन 2005 दैन इन 2004। तो सेकंड स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी कि ओनली 1:2। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Statement X. In 2004, number of candidates offered jobs as a proportion of the number of CVs posted was higher for technical than for managerial candidates. 2004, number of candidates offered jobs as a proportion of number of CVs posted. 2004, number of candidates offered jobs as a proportion of number of CVs posted. तो offered jobs कितना है, और टेक्निकल और मैनेजरियल को हमें कंपेयर करना है। offered jobs as a proportion, तो offered jobs है 181 और number of CVs posted is roughly 60,000। ठीक है, 60,000 में से 181 को जॉब मिला है, तो 600 would have been 1%, तो 181 by 600, दिस इज फॉर टेक्निकल। और मैनेजरियल की कहानी क्या है, 48 आउट ऑफ 15,000, 1% इज 153 और 154, तो 48 by 154। तो किसके लिए लोअर है, किसके लिए हायर है, यहाँ पे दिस इज रफली 0.3 एंड इन दिस केस 0.3 से बहुत मिनिस्क्यूल हायर है, अदरवाइज दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल। और यहाँ पे तुम्हारा 0.3 क्या होगा, 30% क्या होगा, 15 3 जार 45 एंड 1.2 46.2, तो डेफिनेटली मच हायर है। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3 और फिर इसके बाद में कितना बच रहा है तुम्हारा 1.8। ठीक है, 0.31 0.32
के आसपास वैल्यू आ रहा है, तो मच हायर कंपेरेटिवली। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है कि 181/600 से ज़्यादा हायर वैल्यू आ रहा है? भाई यहाँ पे यू कैन राइट दिस एज 180/600 प्लस 1/600। ठीक है, और 180/600 तो 0.3 है ना, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख सकते हो, एंड दिस इज 1/600। अब इसको वैसा का वैसा छोड़ दो, सिमिलरली यहाँ पे लिखो, तो दिस कैन बी रिटन एज 154 का 30% क्या होगा? 30% विल बी 10% होगा 15.4, 3 टाइम्स कर दो तो 46.2, तो 46.2 बाई 154 प्लस 1.8 और है क्या, तो 1.8 बाई 154। अब ये जो फर्स्ट पोर्शन है तो 0.3 है दोनों केसेस में, तो इसको इग्नोर मारो, तो दोनों में ही आ रहा है। बस सेकंड पोर्शन को फोकस करना है, यहाँ पे 1/600 है, यहाँ पे 1.8 बाई 154 है, डेफिनेटली कहाँ पे हायर है? इस केस में हायर है, तो ये वैल्यू हायर होगा। ठीक है, तो टेक्निकल मैनेजर ने पूछा, मैनेजरियल में हायर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रपोर्शन वॉज हायर फॉर टेक्निकल, तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट वाई इन 2004 अमंग दो शॉर्ट लिस्टेड बाई एम्प्लॉयर्स टेक्निकल कैटेगरी हैड ए हायर सक्सेस रेट इन सिक्योरिंग जॉब्स। सो अमंग दो शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, तो 684 में से कितने शॉर्टेस्ट हुए? 684, और मिली है जॉब 181 को, किसमें? टेक्निकल में। तो टेक्निकल में 181/684, एंड मैनेजरियल में दैट इज 48/138। तो मैनेजरियल में दिस इज ऑलमोस्ट 1/3, 48/144 होता है 1/3, और डिनोमिनेटर हमारा उससे भी छोटा है, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन 1/3, 1/3 से हायर है, और दिस इज डेफिनेटली लेसर देन 1/3। तो हायर वैल्यू हमारा किसके लिए आ रहा है? मैनेजरियल के आ रहा है, के लिए आ रहा है। तो हायर सक्सेस रेट कह रहा है इज फॉर टेक्निकल कैटेगरी, दैट इज नॉट करेक्ट। दो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन दोनों ही हमारे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। क्लियर है बात? ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, क्या ही क्लियर है? अदरवाइज 30% निकाल लो फॉर एग्जाम्पल, तो 30% फर्स्ट केस में क्या आएगा? 684, 30% क्या होगा? 68.4, 3 टाइम्स 7 भी मान लोगे तो भी तुम्हारा क्या आएगा? 30% आएगा 210, बट उससे लेसर वैल्यू आ रहा है, तो दिस इज क्लियरली लेस देन 30%। 1/3 से तो छोटा ही है, लेस देन 30% भी है, और यहाँ पे 30% क्या आएगा? 14 भी मान लोगे तो भी 30% तुम्हारा 42 से छोटा आएगा, तो दिस इज ग्रेटर देन 30% फॉर श्योर। जैसे भी कंपेयर कर पाओ, बट कंपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा कहानी नहीं करनी है, सिंपल चीज़ें हैं जहाँ पे हमें रेशियो में एक अंदाज़ा लगाना है, और अंदाज़ा लगा पा रहे हो, वो अप्रॉक्सीमेट कर पा रहे हो, तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अगर यहाँ बहुत एक्यूरेट करने की कोशिश करोगे तो फिर पंगे में फंसोगे, फिर समय खराब होगा और गलतियाँ होंगी। ओके, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। So next set is data given in the table shows the investment details in the country fortune land of companies A, B, C, D, E, and F. Figure in the table are given in US dollars in billions. Okay, figures in table are given in US dollars in billions for A, B, C, D, E, F. 6 companies are there, and year 1, year 2, year 3 के लिए हमें data given है, and all data is in US dollars in billions. First question, what is the percentage increase in investment of B, C, D, and E from year 1 to year 3? B, C, D, E, year 1 to year 3. Okay, so year 1 में क्या रहा है? 4.6 plus 5.8 plus 3.11 plus 10.6, तो 4 plus 5 9, 10.4 हो गया, और 10 plus 3 13.51, 23.51, 24.11। ठीक है, 5 4 9 12 22.71 23 24.11, यस, फॉर ईयर 1। और ईयर 3 के लिए क्या है? 18 और 21 39 39.9, 47.6, और 47.4 प्लस 30, तो आ गया 77.4। ठीक है, देखो ऐड मेंटली जब हम कर रहे थे तो कैसे ऐड करना है? 18.7 में 21.2 ऐड करना है, तो 18.7 प्लस 21 ऐड कर लिया, आ गया हमारा 39.7, फिर 0.2 39.9, अब 7.7 ऐड करना है, तो ऐसे ऐड करो, 39.9 है, 0.1 को पहले ऐड कर लो, 40 हो गया, 40 हो गया, अब 7.6 ऐड कर लो, तो 47.6 हो गया। अब फिर 29.8 करना है 47.6 में, तो पहले ही हमने 47.6 में से 0.2 दे दिया 29.8 को, सो दैट 47.4 बचा, और वहाँ पे 29.8 30 हो गया, तो 47.4 प्लस 30 इज 77.4। ओके, तो 24.11 से हो गया है 77.4, एक डेफिनेट लार्ज चेंज आया है, ऑप्शंस बहुत ही दूर दूर हैं, तो क्लियरली हमारा कितना चेंज आया है? द चेंज इज फॉर 77.4 माइनस 24.11, दैट इज 53.29, विच इज मोर देन 200%, 221% विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of investment of E to F for the years 1 to 3?
ई टू एफ। तो ई का वैल्यू क्या आ रहा है? 10.6 प्लस 17.4 प्लस 29.8। तो 29.8 प्लस 17, तो 30.2 प्लस 17, 47.2, 57.8 इस टू। और एफ के लिए वैल्यू क्या है? 60 प्लस 25, 85.4, 85.2 एंड 8, 93.2। तो रफली दिस रेशियो इज 2:3 से तो बड़ा रेशियो आ रहा है। क्या आ रहा है एग्जैक्टली वैल्यूज? ऑप्शंस कहाँ पे ऑप्शंस है हमारे? 3119 तो आंसर नहीं है। 4153 बिल्कुल आंसर नहीं है। आंसर हमारा बी और सी में से कोई एक होगा। बी को देखें तो 1931 क्या होगा? 3 टाइम्स हो जाएगा ये, 57:93। हाँ, तो वैल्यू इसी के आसपास आ रही है, क्योंकि अगर इसको देखें 20:29 तो 3 टाइम्स करेंगे, दिस विल 60:87। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, 19:31 के आसपास का वैल्यू है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन ईयर 2? डीज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन ईयर 2। सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन करना है बस, बाकी ये कहानी कुछ है नहीं। क्वेश्चन में ईयर 2 की बात कर रहा है, डी का इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है। तो टोटल कितना ईयर 2 में? 6.7, 6 प्लस 7, 13, 14.2, 26.7, 32.3, 32.7, और फिर 49.7, 50, 75। टोटल 75 है, तो 17.4 आउट ऑफ 75। एक सेकेंड, एक सेकेंड। डी इज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन ईयर 2। डी के लिए पूछ रहा है, सॉरी, ई के लिए मेंशन कर दिया था। तो डी के लिए दैट इज 5.6, 5.6 बाई 75। तो एग्जैक्टली परसेंटेज में क्या आएगा? 100/75 करोगे तो इंटू 4/3, रफली आ जाएगा वैल्यू। प्लस 1.9 कर दोगे तो रफली हमारा 7.5% के आसपास का वैल्यू आएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच कंपनी इज इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्रीज फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 3? इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्रीज फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 3। कौन सी कंपनी के लिए इंक्रीज नहीं किया है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 3? सो फॉर ए 2.5 से हो गया, 11.5 इंक्रीज किया है। फॉर बी 4.6 टू 18.7। फॉर सी ऑल्सो इंक्रीज। फॉर डी ऑल्सो इंक्रीज। फॉर ई ऑल्सो इंक्रीज। फॉर एफ ऑल्सो इंक्रीज। सबके लिए इंक्रीज किया है। नन ऑफ दिस विल बी द आंसर स्ट्रेट अवे। What is the percentage difference in investment of companies A, B, C and companies D, E, F in year 2? तो A, B, C and D, E, F in year 2. तो for A, B, C क्या वैल्यू आ रहा है for year 2? That is 6.7 plus 7.5 plus 12.5. तो 12.5 plus 7.5 that is 20, 26.7. And for other three this is 5.6 plus 17.4 about 22, 23, so 48.3. परसेंटेज डिफरेंस इस क्वेश्चन इज आस्किंग। इस क्वेश्चन में बस गड़बड़ ये है कि एग्जैक्टली ये गिवन नहीं है कि हमें कौन सा बेस इस्तेमाल करना है, वेदर ए बी सी विल बी द बेस और डी ई एफ विल बी द बेस। दैट शुड बी मोर अप्रोप्रिएटली गिवन, है कि 26.7, 48.3, तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 22 minus 0.4, 21.6 on the base of 26.7. So answer will be 21.6 by 26.7. तो रफली कितना आ रहा है? whether that will be 42.3% और 67.5% और 81% और 75%। क्या आंसर होगा? यहाँ पे कितना डिक्रीज आ रहा है? 267, 216, तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 51। 51 इज अप्रॉक्सीमेटली 20%, लेस देन 20%। ठीक है, लेस देन 20% और अप्रॉक्सीमेटली 19% आ रहा है। तो आंसर इन दैट केस विल बी 81%। अगर हम ए बी सी को बेस मान के कर रहे हैं तो 81% विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं था, व्हाट इज द परसेंटेज इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनीज ए बी सी एंड कंपनीज डी एफ। ठीक है, ए बी सी को बेस माना तो आंसर हमारा विल बी 81%। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेट एंड ऑल द सेट्स जो कि डिस्कस करने थे इस सेशन में। आई बिलीव जो मैंने डिस्कस किया सारी बातें क्लियर हुई होंगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर कमेंट दैट डाउट एज वेल। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड if you like this session then make sure to hit the like button
and also subscribe to our channel if you've not done that already. That's all for this time. Bye bye, take care, and keep learning.